morning, students. Last class we have discussed about ionic radius, atomic radius, and now this class we will discuss about the isoelectronic species, ionization enthalpy. So first we will discuss about the isoelectronic species. What does it mean? Now when some atoms or ions, कुछ भी हो सकता है, species इसलिए हम mention कर रहे हैं क्योंकि either atoms or ions which contain the same number of electrons. Okay, we call them isoelectronic. Iso means same, electronic means number of electrons are same in that atoms or ions. That is called isoelectronic species. Example क्या क्या है? Now oxygen 2 minus, F minus, Na plus, Mg2 plus. So if we are discussing about that one, oxygen 2 minus, F minus, Na plus and Mg2 plus. So in that sense we can see here oxygen. So what is the atomic number? Actually 8, and so electron is 8 here and proton is 8 here. But here what is the condition? The number of electron is 10 because 2 electron is extra. Here the electron is already, F is coming here 9 and 1 electron is extra, means atomic number is 9, 1 electron is extra, so it is coming again 10, and proton is coming here 9. Okay, and it is coming sodium plus, so you can say electron is coming here, what are there, means 11, proton is 11 here and electron is coming here 11 minus 1 because 1 plus charge is there. Here proton is 12 here and magnesium atomic number 12, so protons are 12 and same number of electrons are also present there, but here 2 plus, that means 2 electron is lost, so 12 minus 2, that is 10. So you can see here every condition we are getting same number of electron, so that's why they are isoelectronic species. But what about their we can say their ionic radius if we are discussing. So ionic radius, it is depending upon which one, their radii would be different, you know, because of their different nuclear charge. You can see what is the nuclear charge here, 8 plus, what is here 9 plus, what is here 11, it is coming about the plus, because what is the in the nucleus, how many protons are present there, on the basis of that the nuclear charge is coming. These are called nuclear charge. Okay, so on the basis of present of protons there in the nucleus, the charge is, because neutrons का तो proton nucleus में क्या क्या होता है, proton and neutron, तो proton and neutron के अंदर proton के positive charge है, neutron की charge होता है नहीं, तो total nucleus की charge क्या हुआ 11 plus, यहाँ पे भी क्या हो गया 12 plus. तो at that condition you can see as the nuclear charge is increasing, so at that we can see that the radius is coming smaller. Okay, as the nuclear charge, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, nuclear charge increasing, the radius is coming smaller. One more thing is there, if we are discussing the cations, है ना, जितना more charge है cations की उतना ही radius क्या होता है, कम होता है ना. When you are going from left to right in a period, so अगर आप already पहले पढ़ चुके हैं ionic radius में कि cations are smaller than their parent atoms and anions are larger than their parent atoms, क्योंकि जब भी electrons extra आते हैं तो they are repelling each other, so that's why the ionic radius of the anions are more than or larger than their parent atom. Here the ionic radius of cations are smaller. ये दोनों cations है, positive charge मतलब cations है, तो you can say here ionic radius of cations are smaller than their parent atoms. So definitely अगर इन चारों के बीच आपको अगर consider करना है तो at that condition what you can say here, now whose atomic radius सबसे कम आएगा ना Mg2 plus की, whose सबसे ज़्यादा आएगा ना oxygen 2 minus, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना radius, or we can say the ionic radius also you can see, or simply radius also you can see, because these all are ionic because they all are present in ionic form, so this is ionic radius. Okay, so now in case of isoelectronic species, it is given here their radii would be different because of the different nuclear charge. The cations with greater positive charge will have a smaller radius because of the greater attraction of the electrons to the nucleus, क्योंकि क्या हो गया ना मैग्नीशियम 2 प्लस, इसमें मैग्नीशियम 2 प्लस में क्या हो गया ना, देखो 1:2 यहाँ पे क्या हो गया ना K L M, so 2 8 2 condition, so at that
एट दैट कंडीशन व्हाट यू कैन से, जब भी एक दो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया तो डेफिनेटली क्या हो गया, इसकी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10, बट प्रोटॉन कितना है 12, है ना। प्रोटॉन तो लॉस्ट नहीं हुआ, लॉस्ट कौन सा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेटली अट्रैक्शन क्या, प्रोटॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कम है तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो डेफिनेटली द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज स्ट्रॉन्गर है देन द सिंपल एटॉम। अगर मैग्नीशियम एटॉम और मैग्नीशियम आयन ले लो तो अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम आयन में ज़्यादा होगा। तो किसकी रेडियस कम आएगा, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम 2+ की रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, सो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ की रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट कंडीशन। आई कैन शो यू इन टेबुलर फॉर्म हियर, यू कैन सी हियर, लुक एट हियर, नाइट्रोजन 3-, ऑक्सीजन 2-, फ्लोरीन -, Na+, Mg2+, Al3+। तो इसमें न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, देखो न्यूक्लियर चार्ज इज +7, +8, +9, +11, +12, +13। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं उतना ही आयोनिक रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप देखो पहले 171 और धीरे धीरे ये कम होता जाएगा और ये आएगा आयोनिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। नाउ वन क्वेश्चन इज देयर इन योर बुक, which of the following species will have the largest and the smallest size। यहाँ पे क्या देके रखा है, मैग्नीशियम है, Mg2+ है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3+ है। तो अगर हम कंसिडर करें व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, सो द एटॉमिक रेडियस विल बी decreased, all of you know that one. When you are going from left to right in a period, atomic radius is decreased. So magnesium, which period it is coming here, now third period, sodium, magnesium, then aluminium. So at that condition we can see magnesium और aluminium, तो atomic radius decrease हो गया, तो magnesium से aluminium की atomic radius क्या है, decreased है। अच्छा, इसके बाद हम क्या आ जाते हैं कि Mg2+, Al3+, तो किसका चार्ज ज़्यादा है, 3+ की चार्ज ज़्यादा है। कैटायन में जितना चार्ज जिसका ज़्यादा होगा उतना ही रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्यों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है, ये 12 है, ये 13 है, इसका कितना है ना 10 है, इसका कितना है 10 है। तो अभी देखो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड, कैटायंस आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम्स अमंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, द वन with the larger positive nuclear charge will have a smaller radius, that means Al3+, that is actually smallest one, and largest one कौन आएगा ना, मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम कम है, जो when you are going from left to right। and second condition कि मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ की कम है, बट एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3+ की भी कम है, लेकिन इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो एल्यूमिनियम 3+ की सबसे कम रेडियस, क्योंकि इसकी चार्ज सबसे ज़्यादा है, 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया। तो कंपेरिजन क्या हो रहा है ना 13 के साथ 10, मतलब 13 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन हो रहा है। तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ पे आएगा, एल्यूमिनियम 3+ में। Next we are coming for the ionization enthalpy. So ionization enthalpy we are coming. What is the meaning of enthalpy? का मतलब है एनर्जी, है ना। तो ionization enthalpy का मतलब है the energy which is required to remove the outermost electron, है ना, in an isolated gaseous atom in its ground state, to convert the gaseous atom into its ionic form। मैंने क्या बोला ना, रिप्रेजेंट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड। एंथैल्पी का मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटॉम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सपोज मान लो कि सोडियम, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा ना 2, है ना, ये न्यूक्लियस है, तो फर्स्ट है 2 एंड नेक्स्ट सेल में क्या आएगा, एल सेल में क्या आ जाएगा 8, नेक्स्ट सेल में क्या आ जाएगा 1, ठीक है, नेक्स्ट सेल में आ जाएगा 1, ठीक है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1। सो द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द outermost electron from its outermost shell in its gaseous atom condition, that to convert it into gaseous ion, मतलब सोडियम it is converted to which one, sodium plus।
तो द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर फास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फास्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, डेल्टा आई एच, है ना, डेल्टा आई एच। तो इसमें अगर आपको सपोज फास्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फास्ट इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर रहे हो तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा आई एच वन। अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर रहे हो तो डेल्टा आई एच टू, अगर थर्ड वन डेल्टा आई एच थ्री, इन दैट कंडीशन। Okay, so now you can see here the next fast transition enthalpy for an electron X, element X is the enthalpy change, that is delta IH for the reaction. Okay, and if one is the reaction is given to us X is actually releasing the electron and converted into cation, atom is converted into ion। जब रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन होगा तो डेफिनेटली कैटायन में फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फास्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब उसी पॉजिटिव चार्ज और कैटायन से वन मोर इलेक्ट्रॉन इज रिलीजिंग, है ना, दैट इज कॉल्ड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी देखो यहाँ पे X प्लस से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो X2 प्लस हो गए, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकेंड मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, इट इज एक्चुअली कॉल्ड द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के, किलो जूल पर मोल। किलो जूल तो एनर्जी की यूनिट आपको पता है, पर मोल में कितना किलो जूल एनर्जी चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अभी डिपेंड करेगा कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है या फास्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो एनर्जी जब इस सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होगा, फास्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव करना फ्रॉम एन एटॉम और फॉर एन आयन कैटायन, तो दोनों में किसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा, मोस्ट होगा देन दिस वन। अगर हम इसकी कंसिडर कर ले, सोडियम एटॉम है और जब इलेक्ट्रॉन एक लूज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे ये कंडीशन आएगा, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगा, Na+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 2,8। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन आर कमिंग कितना, इलेक्ट्रॉन 10 और प्रोटॉन कितना है 11। तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 11 है, यहाँ पे प्रोटॉन भी 11 है, तो कहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, यहाँ पे सेम नंबर की है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन ज़्यादा है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। और दैट्स वाई वन मोर इलेक्ट्रॉन रिलीज करना क्या हो जाएगा, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी तब, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है इधर। तो वन मोर इलेक्ट्रॉन को अगर आपको रिलीज करना है तो डेफिनेटली मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। दैट्स वाई डेल्टा आई एच वन इज एक्चुअली लेस देन व्हिच वन ना, डेल्टा आई एच टू, क्योंकि H2 के लिए आपको जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए दैट इज एक्चुअली मोर देन फर्स्ट वन। तो सेम वे में थर्ड भी सेकेंड से ज़्यादा होगा एंड सो ऑन, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है द सेम वे थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन द सेकेंड एंड सो ऑन। Okay, next one we are coming कि fast ionization enthalpies of element having atomic number up to 60, है ना, are plotted। देखो यहाँ पे ये up to 60 तक, 60 एटॉमिक नंबर एलिमेंट तक यहाँ पे प्लॉट करके रखा है, किसकी, फास्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में। तो यहाँ पे आप मैक्सिमा कहाँ पे शो करा रहे हैं, देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन में। तो यहाँ पे आप देख लो कि जितना नोबेल गैसेस है उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, मैक्सिमम है। और जितना आप देखो फास्ट ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फास्ट ग्रुप वाले जो इतने एलिमेंट होता है तो उसमें क्या होगा ना, इसकी मिनिमम कंडीशन आता है, किसकी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो जितना मिनिमम वी कैन से द मिनिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी जितना है उतना ही रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, क्योंकि मिनिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब बहुत ही इजीली दे कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन। मिनिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेटली क्या होता है कि जिसके पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है ना, NH2 मतलब फुल फिल्ड, है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फुल फिल्ड। तो एट दैट कंडीशन क्या होता है ना, जब भी इसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है एंड दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। जिसका स्टेबिलिटी, एटॉम की स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा है उतना ही क्या होता है, डिफिकल्ट होता है उसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करना।
ठीक है। whereas यहाँ पे क्या होता है ना, इसकी जो सबसे, क्योंकि जब भी पीरियड के थ्रू आप जाओगे तो एट दैट कंडीशन क्या होगा कि लिथियम, जैसे सेकेंड पीरियड में लिथियम के क्या हो जाता है ना, सबसे एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है ना, उसके बाद धीरे 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 कम होता जाएगा लिथियम, जब बेरिलियम बोरोन कार्बन, तो इसमें क्या धीरे 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 कम होता जाएगा। तो लिथियम के उस पीरियड के अंदर इसको छोड़ के, है ना, नियॉन को छोड़ के, तो आप लिथियम को क्या हो जाएगा ना, धीरे 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 क्या हो जाएगा, इसकी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता जाएगा, तो डेफिनेटली इसकी जो आयनेशन एंथैल्पी धीरे धीरे क्या हो जाता है, बढ़ता जाएगा, कि जितना मतलब साइज छोटा होता जाएगा अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, तो आयनेशन एंथैल्पी और जो एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड to remove an electron, that also will be higher. Okay, so you can see here the maxima at the noble gas which have closed electron shells. Why closed? Because NH2NP6 है ना, ये उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके बाद जैसे हीलियम ले लो 2s2 है, नियॉन ले लो, क्या आ जाएगा 2s2 2p6, 3s2 3p6, in that way it will be going on. So now as the the orbitals are completed, that's why the electrons are closed, electronic configuration is stable here. And on the other hand, minima occur at the alkali metals and their low ionization enthalpy can be correlated with their high reactivity. तो definitely ये reactive है ही नहीं, सबको पता है, non reactive gas noble gases, और ये रिएक्टिविटी इसकी मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं कि दोनों ट्रेंड, एक तो आपके पास आएगा कि पीरियड की है और एक ग्रुप वाला है। देखो ये वाला है पीरियड की, है ना, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सेकंड पीरियड की जितने एलिमेंट्स है उसके आयनेशन एंथैल्पी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और अगर आपको ग्रुप को कंसिडर करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका कम होता जाएगा। क्या रीजन है ना, ये जब भी आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाओगे तो इसकी क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा। जितना एटॉमिक रेडियस कम होगा उस कंडीशन में देखा जाए कि उसका आयनेशन एंथैल्पी बढ़ा, मतलब इंक्रीजिंग हो जाएगा। बट वन कंडीशन इज देयर, सम केसेस लिटिल बिट एक्सेप्शन इज देयर। व्हाट इज द एक्सेप्शन एक्चुअली, इट इज़ कमिंग, जब भी हम लोगों ने देखा है कि व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, तो इंक्रीजिंग होना चाहिए। बट यहाँ पे देखो बेरिलियम टू बोरोन, यहाँ पे क्या 899 और इसके बाद 801 हो गए, मतलब कम हो गया। क्या रीज़न है इसके पीछे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसको 1402 है किलो जूल पर मोल, है ना, मैंने अभी बताया कि आयनेशन एंथैल्पी की यूनिट क्या होना चाहिए, किलो जूल पर मोल, और यहाँ पे क्या हुआ 1314। लेकिन नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो है या न्यूक्लियर चार्ज जो है दैट इज मोर, जितना न्यूक्लियर चार्ज मोर होगा उतना ही आयनेशन एंथैल्पी कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए तो लेकिन कम हो गया। तो यहाँ पे जो दो एक्सेप्शन आपके पास दिख रहे हैं, बाकी तो सभी इंक्रीजिंग है, तो दिख ही रहे हैं आपको। इनके पीछे क्या रीज़न है, एक तो है बेरिलियम। अगर आप मान लो बेरिलियम की बात करें तो व्हाट इज एक्चुअली द बेरिलियम 1s2 and 2s2 condition, okay, and what is boron condition, boron is 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो अगर देखो 2s और 2p अगर हम न्यूक्लियस को ड्रॉ करें, है ना, तो ये 1s 2s कंडीशन जो है, तो ये हो गया आपकी जो 2s और 2p कंडीशन। तो 2s जो है सबशेल, तो ये हो गया मोर क्लोजर, किसकी मोर क्लोजर, न्यूक्लियस की मोर क्लोजर देन 2p है तो एक ही ऑर्बिटल, लेकिन 2s और 2p दो क्या हो जाता है, सब ऑर्बिटल हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबशेल बोलते हैं। और उसी सबशेल में 2s जो है मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन 2p। तो अगर 2s में कोई इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करना और 2p में कोई इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करना, तो कौन सा इजी होगा ना, 2p वाला, क्योंकि 2p न्यूक्लियस से दूर है, एंड दैट्स व्हाई एज डिस्टेंस इज मोर सो अट्रैक्शन इज लेस, एंड दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी लॉस्ट इजीली कंपैरेटिवली टू व्हिच वन, 2s। दिस इफेक्ट एक्चुअली कॉल्ड पेनिट्रेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन। एज 2s subshell is more penetrating towards the nucleus than 2p, so the electrons which is losing from 2s that needs more energy than 2p,
दो बोरोन न्यूक्लियर चार्ज इज मोर देन व्हिच वन, ना बेरिलियम। ठीक है, क्योंकि ये 5+ ये 4+ है न्यूक्लियर चार्ज जो है, तो न्यूक्लियर चार्ज इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है, तो अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा आना चाहिए, इसका साइज क्या होना चाहिए ना कम, जो बेरिलियम और बोरोन की हिसाब से हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, इसकी न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसको ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना, इसका कम हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी देन दिस वन। रीज़न वही है, as 2s is more penetrating than 2p, so the electron is losing for s subshell that needs more energy than 2p electrons. So that's why the beryllium, the ionization enthalpy is more than boron, जबकि बोरोन की ज़्यादा होना चाहिए बेरिलियम से। फर्स्ट कंडीशन ओवर। सेकेंड में आप देखो कौन सा है ना, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, so nitrogen, so what is the electronic configuration if we are discussing that one? 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। ठीक है, 7 जो है इसकी एटॉमिक नंबर, सो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस वन। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz1। तो डेफिनेटली आप देखो किस में हाफ फिल्ड कंडीशन है, स्टेबिलिटी कंडीशन किस में ज़्यादा है, नाइट्रोजन में, क्योंकि यहाँ पे p ऑर्बिटल जो है सबशेल जो है दैट इज हाफ फिल्ड, whereas in oxygen it is not coming because in 2px2 electrons are there, so repulsion is coming more here than this one। जब भी repulsion ज़्यादा होगा तो at that condition क्या हो जाएगा ना, atomic radius तो जो भी हो, attraction, जब भी repulsion ज़्यादा होगा तो attraction between the nucleus and outermost valence electron क्या हो जाएगा, decrease हो जाएगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन चल रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो गया ना, हाफ फिल्ड कंडीशन, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है। स्टेबिलिटी जिसकी ज़्यादा है उसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज एक्चुअली नॉट, दिस नीड्स, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नीड्स मोर एनर्जी टू रिलीज, क्योंकि स्टेबल है ज़्यादा ये, है ना, ऑक्सीजन से। सो दैट्स वाई द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, टू रिलीज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन रिक्वायर्स मोर enthalpy or energy than oxygen. Okay, and so that the ionization enthalpy of oxygen is less than nitrogen. Okay, these are the we can say the two anomalies are there. जो normal trend होता है that is atomic ionization enthalpy will be increasing across the period, but in case of we can say here it is that is actually it should be increasing straight, but here it is some anomalies are there from beryllium to boron, from nitrogen to oxygen. Okay, in case of the we can say about the group, when you are coming down the group, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, when you are going down the group you can see the ionization enthalpy is decreasing and in a regular trend. So why it is, because when you are going down, so what is coming now, the shells are increasing by 1, so jitna cells are increasing by 1, so definitely the distance between the nucleus and outermost valence electron is keep on increasing. जितना distance increase होगा उतना attraction क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, so it is very easy for the outermost electron to release the electron when we are coming down the group. That's why जितना नीचे की तरफ आओगे उतना ही क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम चाहिए, और क्योंकि इसको रिलीज करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, अट्रैक्शन कम है। Okay, so you can see here this is the graphical representation of we can say the alkali metal, that is first group, alkali metal, so lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and the trend is decreasing. किसकी trend ना, ionization enthalpy।